हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार सच में काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने कोई शॉर्ट्स या वीडियोस नहीं डाले, कोई रेसिपीज़ वगैरह कुछ भी नहीं डाली। एंड आई नो कि अभी ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं हैं मुझसे, तो एक्चुअली वो मुझे भी इतना बॉदर नहीं कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी ये 1.5-2 महीने जो भी था। So it's basically a major life update in my life, and the life update is that I have moved to Belgium in Mechelen. एंड नथिंग इज़ लाइक एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चल रही होती है, बट मैं ये चीज़ आउट नहीं करना चाहती थी जल्दी। एंड उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी रिगार्डिंग माई जॉब, माई हस्बैंड्स जॉब, एंड प्लानिंग कि वहाँ जा कर के कैसे क्या करेंगे। So basically my husband has got an on-site opportunity, and he has been sent from his India location to Mechelen to the client office, which means that I had to sacrifice my job. And in the meantime a lot was going, like I was talking to my manager and the people there, convincing them if I could get an on-site opportunity also, because we both were working in the same company. So I really had hopes that I could also be sent on site, but then my project did not have any on-site opportunity. And even if it had, then I had to go to Switzerland, which was again a task कि यूरोप आके भी आप 2 अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो, तो वो फिर वो अलग ही पंगा हो जाता मतलब. So then I decided that okay, I'll leave my job, and there's always that you can shift somewhere and you can find another job. Even they suggested that you can apply over there, and since you are already an ex-employee of that company, maybe they'll give you some preference and all. So it was very heartbreaking because that was my first job, and there's a lot that I learned from it, and then just leaving everything was very difficult. बट एक्चुअली व्हाट आई वांट टू कम हियर एंड से इज़ दैट ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना, जब आप कहीं पे जाने का डिसाइड करते हो, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. So at first, about April, May 2023, we were informed that something of this sorts is cooking, and they asked my husband if he was willing, and obviously he was willing that we can go to on-site. And also slowly the documentation work started, and it is a lot. I mean, there is a lot of documentation, a lot of requests to be provided, a lot of emails to the company, to passport office, police stations, and everything. There is a lot of things, and I'm thinking that I'll make another video about that, because when I was going through all of this process, मैंने YouTube पे बहुत search करा, but I couldn't find any video which was raw enough to tell me that actually क्या क्या होने वाला है और कितना टाइम होने वाला है. सो मे बी हर किसी का एक्सपीरियंस भी अलग होता है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ एक्चुअली हैविंग योर पेपर्स इन देयर हैंड. सो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो कैसे है, वो क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है. बट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ये था कि बहुत टाइम लग गया हर चीज़ में, एंड उसकी वजह से मेंटली हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि अब जाते जाते ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचा था. बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर, ऑलमोस्ट 1 साल लग गया हमें फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी एंड. एंड वो बीच में मेरे से गलती हो गई कि मैंने अपनी जॉब जल्दी छोड़ दी थी, बिकॉज वी वर गिविंग अ सर्टन डेट. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई लेफ्ट माई जॉब, बट देन इट टुक लाइक more 5-6 months, and बहुत सारी चीज़ें हुई. So I'll make a separate video about all of this, because I know somebody or the other would be like me, जो आगे अगले 1-2 महीने में या इनफैक्ट अभी ही गूगल कर रहा होगा कि भाई कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में. सो दे शुड ऑलवेज हैव अ प्लान कि ठीक है इतना टाइम लगने वाला है, हम इस टाइम पे ये करें. बिकॉज ना सबसे ज़्यादा लगते डिपेंडेंट की ही है. The person who's going is actually going, so he's in another trip. He is obviously consumed by a lot of work in the office and the other external work, but the person who is going with him or with her, they are the people who have to wait, and who gets consumed the most in all of this process. सो वटेवर जो गलतियाँ मैंने करी, मैं डेफिनेटली नहीं चाहती कि कोई भी करे, बिकॉज वो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ड्रेनिंग है. तो आई वुड नॉट सजेस्ट
मैं डेफिनेटली इस बारे में और कंटेंट डालूंगी. सो इवन इफ 2 or 3 पीपल गेट टू नो अबाउट इट एंड उन्हें वो किसी भी तरीके से हेल्प करे ना, आई वुड बी एट वेरी वेरी पीस. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कुछ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज के बारे में देखो. मेरे पास इतना सारा टाइम था बट मैं मेंटली इतनी परेशान हो गई थी ना कि यार कब जाएंगे, जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे. मतलब से रिश्तेदारों को भी बता दिया है, नहीं गए तो हंसेंगे वो लोग अजीब हम पे. और इस चक्कर में मैं किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई. ना मैं अपने रिज्यूम बिल्डिंग पे कंसंट्रेट कर पाई, ना मैं कुछ लैंग्वेज लर्न करने पे कंसंट्रेट कर पाई. बट ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ पर आकर के भले मुझे भी बहुत कम टाइम हुआ है बट मैं जॉब्स ढूंढ रही हूँ, उसमें इंग्लिश ठीक है बट मैंडेटरी दे नो वांट वन लैंग्वेज. लाइक इन बेल्जियम इट्स मोस्टली डच और आइदर फ्रेंच और जर्मनी ऑल्सो दे आर आस्किंग. सो एक लैंग्वेज आई वुड से डच सीख लो, कंपेरेटिवली थोड़ी ईजी है फ्रेंच और जर्मन से, तो वो एक आपको ज़रूर ही आनी चाहिए. दूसरी चीज़ ये कि करेंसी कन्वर्जन्स, मतलब ये सब तो आजकल गूगल पे बहुत इजीली मिल जाता है कि क्या मतलब करेंसी है और कितना कन्वर्जन है. तो थोड़ा पैसा ना अपने पास रखो ही इन अमाउंट्स ऑफ बोथ कैश एंड कार्ड्स, बिकॉज आई हैव सीन कि यहाँ पे जो हम इंडियन स्टोर्स में गए ना एक दो, उन्होंने हमसे फॉरेक्स कार्ड वगैरह में पेमेंट लेने से मना कर दिया क्योंकि शायद प्रॉब्लली उन्हें कुछ सिस्टम टैक्स या कुछ तो भी लग रहा है. तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप कार्ड से पेमेंट मत करो, या तो आप आपका लोकल कार्ड जो यहाँ के बैंक का हो वो करो और या फिर आप कैश में करो. और यहाँ आकर के बैंक खुलवाना एटलीस्ट 15-20 दिन, 1 महीना तो आपको लगेगा क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, उसके बाद आपका कार्ड आएगा एंड आपकी सैलरी भी आपको तुरंत आते ही सैलरी नहीं मिल जाएगी ना. मतलब डेफिनेटली दे विल गिव यू सम अमाउंट देयर एंड देन सेंड यू, बट देन आपको सब कुछ ही यहाँ पे सेटअप करना है. आपको घर ढूंढना है, आपका रेंट जा रहा है, इवन 2-3 महीने का एडवांस भी वो लोग ले रहे हैं. फिर आपको सामान चाहिए, अभी अगर आपका अनफर्निश्ड घर है तो आपको बेसिक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको चाहिए ही, बेड या फिर गद्दा. तो दीज आर स्मॉल एक्सपेंसेस विच एक्चुअली काउंट टू अ बिग अमाउंट. सो यू डेफिनेटली नीड मनी विथ यू एंड ये तुरंत पे कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, तो वो आपको इकट्ठा करके लेके ही आना रहेगा अपने साथ. दूसरी चीज़, हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी अगर आप आ रहे हो इंडिया से एंड यू आर ब्रिंगिंग सम यूटेंसिल्स, सो डेफिनेटली कुछ जो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, क्या क्या सामान लाना है. आई एम नॉट सपोज टू से दिस बट मैंने एक्चुअली 3-4 लोगों के वीडियोस देखे कि आप ये लेके आओ वो लेके आओ, यार कुछ भी यूज़फुल मुझे नहीं लगा. यहाँ पे आकर के ना पूरा गेम प्लान ही अलग लग रहा है. तो लाइक मे बी इट्स देयर एक्सपीरियंस या उनको उनके घर पे डिफरेंट सेटअप था या जो कुछ भी था, बट मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं ना. तो आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन वॉट थिंग्स यू एक्चुअली नीड टू ब्रिंग. खाने पीने का सामान थोड़ा सा कम लाओगे ना तो भी चलेगा, उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ही आपको लाने की ज़रूरत है. बाकी तो अगर आप ब्राज़िल्स में रह रहे हो, आपको एक बहुत बड़ी दुकान है वहाँ पे. अगर आप गेंट में रह रहे हो तो भाई आप ब्लेस्ड हो क्योंकि वहाँ पे वो एक हिमालयन एग्जॉटिक करके इतनी बड़ी शॉप है ना, आपको हर ही चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे. बट प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर आपसे ये छोटे छोटे शहरों में रह रहे हो, जैसे मैकेलन में रह रहे हो या एंटवर्प में रह रहे हो या मे भी और भी कोई शहर है जो मेरे को अभी नहीं पता, तो वहाँ पे ना इतना नहीं है. मैकेलन में 2-3 शॉप्स हैं इंडियन शॉप्स, बट वहाँ पे ना बहुत ही बेसिक सामान मिलता है आपको. आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ मतलब आपसे बर्तन ढूंढने जाओ तो आपको कोई बर्तन नहीं मिलेगा वहाँ पे. तो ये थोड़ी सी ना दिक्कत है मतलब ये सब जगहों पे. एंड देन ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव भी है. अभी जैसे हमें एक बर्तन लेने पड़ा था, उसमें MRP 1300 रुपये लिखी हुई थी एंड हमें वो 2500 रुपये में ख़रीदना पड़ा. मतलब ऑब्वियसली वी पेड इन यूरोज बट देन द कन्वर्जन वॉज 2500 रुपये. सो इट्स ऑलमोस्ट डबल द प्राइस. बट अब यू कैंट डू एनी थिंग बिकॉज ठीक है वो लोग को भी चार्ज लग रहा है लाने का एंड देन वो दुकान चला रहे हैं तो वो भी कुछ कमाने के लिए चला रहे हैं. बट you could, I just thought that I could easily bring it from India. It would have been much easier कि मैं मैकेलन से ब्राज़िल्स गई, एक अपना संडे बर्बाद किया मैंने, ट्रेन में पैसे बर्बाद किए, मैं पता नहीं 4-5 किलोमीटर कितना चली वहाँ पर और वो दुकान पे पहुँची एंड देन इतना प्राइस दिया. सो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. इफ़ आई न्यू इट फ्रॉम बिफोर आई कुड ईजीली हैव गॉटन इट फ्रॉम इंडिया. सो ये चीज़ मेरे को लगती कि हर घर के हिसाब से ना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. यहाँ पे बहुत अलग अलग सिस्टम्स हैं.
उसके हिसाब से आपको अलग अलग सामान चाहिए, तो वो तो है ही। उसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगी कि छोटी किचन की ना आदत डाल लो आप, क्योंकि यहाँ पे किचन्स बहुत छोटे हैं, मतलब इट जस्ट स्टार्ट्स एंड इट जस्ट एंड्स। लाइक द कुकिंग स्पेस दैट आई हैव, मतलब एक जगह पे मेरा कुकिंग का वो इंडक्शन वगैरह का एरिया है, एक जगह पे सिंक है, एंड आई जस्ट हैव दिस मच ऑफ स्पेस, लिटरली दिस मच ऑफ स्पेस टू कुक। एंड it's that, like मैक्सिमम आई वुड से 85-90% घरों का यही हाल है, इतनी ही जगह रहती है। बिकॉज हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हम दाल चावल सब्ज़ी रोटी सैलड ये वो सब इतनी दुनिया जहान की चीज़ें हम प्रिपेयर करके खाते हैं ना, वो लोग जा कर के शॉप से सीरियसली प्री मिक्स सैलड्स का जो भी रहता है ना, यहाँ पे बहुत मिलता है प्री मिक्स कट और रेफ्रिजरेट किया हुआ। दे वुड जस्ट बाय दैट एंड मे बी उसको गर्म करेंगे, उसमें सॉसेजेस वगैरह भी सब मिलते हैं, वो सब निकाल के खुल के ऐड करके और खा लेंगे। सो दे डो नॉट रिक्वायर दैट स्पेस ना। वो थोड़ी हमारी तरह आटा गूंद रहे हैं या चावल पका रहे हैं या सब्जियां काट रहे हैं, वो नहीं कर रहे सब। सो दैट्स ओके टू देम, दिस मच ऑफ स्पेस इज सफाइज फॉर देम, बट हमारे लिए नहीं है, कि एक तो थोड़ी सी आदत बिगड़ी हुई है सब चीज़ फैल के काम करने की, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम रहेगा। एंड वेदर के हिसाब से भी, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, मेरे घर पे वहाँ पे मेरी मम्मी वगैरह से सबसे बात होती है, इट्स टू हॉट ओवर देयर। यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब मैं घर के बाहर ऐसे कदम बिना एक ओवरकोट के नहीं रख सकती। घर के अंदर हीटर वीटर चला करके मैं बैठी हूँ तभी भी आई एम स्टिल फीलिंग अ लिटिल कोल्ड, बट इट्स ओके। लाइक घर के अंदर हूँ तो मैंने नहीं पहना है कुछ भी, बट अगर मैं नीचे जाती हूँ या बाहर जाती हूँ, आई हैव टू वेयर समथिंग, आई कैन नॉट गो आउट लाइक दैट। सो ये एक चीज़ है, तो अम्ब्रेलाज वगैरह रखने पड़ते हैं। बारिश हो रही थी यहाँ पे अभी दिन में सुबह, तो ये एक चीज़ है। सो या आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन वॉट ऑल थिंग्स। एक्चुअली आई जस्ट स्टॉप दिस वीडियो एंड मेक अनदर, बिकॉज इसमें अगर ऐड किया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं वो नहीं करना चाहती। सो आई जस्ट मेक अनदर वीडियो एंड देन पोस्ट ऑल ऑफ दिस एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज I was really shattered seeing the content I got to see. Like I am not blaming anybody, किसी की भी गलती नहीं है, जिसको जो एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करता है, बट what I have seen and what experience I've got is totally very very different. I was not expecting it at all. So I definitely want to put this out, and if you know anyone, any relatives or friends who are going out, so I will try to make a very very detailed video in which मैं मैक्सिमम चीज़ें जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, इनफैक्ट आई हैव अ 2-3 ऑफ माई फ्रेंड्स हियर, सो मैं उनसे भी बात करूँगी इफ़ दे हैव सर्टन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट ऑल थिंग्स दे थॉट दैट उनको पता रहती तो अच्छा रहता। सो मैं वो सब भी कलेक्ट करके एक वीडियो बनाऊँगी एंड उसे पोस्ट करूँगी। एंड द मेन एम इज़ जस्ट टू हेल्प पीपल, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे चीज़ें, कुछ ऑब्वियसली। बाकी you love the place, I mean the weather, the people, the vibe, the roads, I mean मैं क्या बताऊँ, पता है आपको, आप रोड पे अगर चल रहे हो ना और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाजू में खड़े हो जाओ, गाड़ियाँ रुक जाएंगी भाई। मतलब सिग्नल वाले जो नहीं होते ना, जिनमें सिग्नल नहीं लगे कि भाई चलने वालों को साइकिल वालों को रुकना है, खड़े नहीं होना है, ऐसी नॉर्मल है, रुक जाएंगे वो लोग आपके जाने के लिए। मेरे को लगता है इतना प्यार मेरे को इंडिया में तो कभी नहीं मिला, वहाँ पे तो उल्टा मार के निकल जाएंगे। बट या ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स आर रियली नाइस. So yeah, that's it for the video right now, and I hope you all are doing good and stay safe, stay good. Bye.